Hello students, welcome back. In today's lecture, we will start your fourth chapter, and that is the reproductive health. And this is the last chapter of our first unit, reproduction. Now in last chapter, we had discussed about the whole reproductive system in human. And in this particular chapter, we will focus on the reproductive health. So first, we are going to discuss that what is the reproductive health. Now, according to the WHO, that is World Health Organization, the reproductive health is a state of complete physical, mental, and socially well-being, and not merely the absence of disease or infirmity in all matters relating to reproductive system and to its function and processes. यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें हम कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है उसे इंक्लूड करते हैं, ना कि अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कोई डिजीज़ नहीं है यानी कि इट्स फ्री ऑफ डिजीज़, देन both the reproductive system are functioning properly. That is, the female reproductive system produce egg cell and the male reproductive system produce sperm. Then that is not only the reproductive health, यानी कि हम जो फिजिकल, मेंटल और सोशल कंडीशन है पर्टिकुलर इंडिविजुअल की उसे भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसमें इंक्लूड करते हैं. So it includes all the social and emotional aspects of the reproduction. तो अब ये जो रिप्रोडक्शन जो है उसकी हेल्थ यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अ सोसाइटी विद पीपल having physically and functionally normal reproductive organ, that is each and every organ of the reproductive system are functioning normally and having normal emotional and behavioral interaction. बिकॉज हमने आगे भी मेंशन किया कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इमोशनल और जो बिहेवियरल पोर्शन है उसे भी इंक्लूड करता है. देन द नॉर्मल इमोशनल एंड द बिहेवियरल इंटरेक्शन अमॉन्ग द member of society in all sex related aspects is called reproductively healthy. तो इस तरह से पूरी जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी भी हो सकती है. And in this chapter we will learn about the reproductive health problem and strategies, then population explosion and birth control, then MTP, medical termination of pregnancy, then STDs, that is sexually transmitted diseases, and the infertility and the solution for infertility. So first we are discussing about the problems and strategies for the reproductive health. अब ये reproductive health जो है उसे सिलेबस में इंक्लूड करना या फिर आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना क्यों इम्पोर्टेंट है वो आगे हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्टली द इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इनिशिएट द एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल. सो ये MCQ के लिए आपको खास याद रखना है दैट इंडिया जो है वो ऐसा फर्स्ट कंट्री है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसे अटेंड करने के लिए नेशनल लेवल पे एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स जो है वो इनिशिएट किए हुए हैं. और ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं उसे हम कॉमनली फैमिली प्लानिंग के नाम से जानते हैं. सो द इंडिया इनिशिएट दिस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स in 1951, and in nowadays this program also include the health of
child. So, and nowadays it is known as RCH, that is reproductive and child health care, in which all the reproductive health and the child health both are included. अब ये जो प्रोग्राम है RCH, उसका जो मेजर टास्क था दैट इट वाज द क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द reproduction related aspect and also provide support to build up a reproductively healthy society. So ये दो जो है वो मेजर टास्क थे अंडर दी RCH. अब ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में अवेयरनेस जो है वो कैसे हम ला सकते हैं, यानी कि वो कैसे क्रिएट हो सकती है. सो दी सॉल्यूशन इज़ द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल and print media, and by using all these sources, that is audiovisual sources and print media, the governmental and the various non-governmental agencies also help in creating the awareness among the people about these reproduction related aspects. Then the parents, close relatives, teachers, friends, they also play an important role to give this information. Now ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी का कॉन्सेप्ट है या फिर जो सेक्स एजुकेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन या फिर उसका इंट्रोडक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है. सो मेनली टू एनकरेज और प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू यंगर्स. उन्हें रिप्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही से उनके पास पहुँचे, और टू डिस्करेज दी चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स. अभी के जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनमें मेनली क्या होता है, उन्होंने कहीं से सुना होता है या फिर जो सोशल मीडियाज़ हैं उनके थ्रू या फिर अपने आसपास कहीं से भी जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं और उनके बारे में जो मिसकंसेप्शन है उनके बारे में सुना होता है और वो उसी पे बिलीव करते हैं. और इसके अलावा सेक्स रिलेटेड जो मिथ्स हैं उनमें भी वो ज़्यादा बिलीव करते हैं. सो टू डिस्करेज द मिथ्स एंड द मिसकंसेप्शन, द सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Now for the proper information about the reproductive organs, then adolescence and its related changes. Adolescence यानी कि मेनली जो टीनेज होती है उसमें बहुत सारे फिज़िकल और मेंटल या फिर जिसे हम हार्मोनल चेंजेस बोलते हैं वो मेनली प्रोसीड होते हैं. तो उस रिलेटेड जो भी चेंजेस यानी कि उनकी बॉडी में ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो उन एडल्ट्स या फिर जो टीनेजर्स हैं उनके पास करेक्ट पहुँचे. इसके लिए ये सेक्स एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ अदर आर सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस so that they will not suffer from the any kind of infection. Then the information about STDs, that is sexually transmitted diseases, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. तो ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन थी जो पीपल हैं उनके पास करेक्ट होनी चाहिए. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्हें प्रोवाइड करने के लिए ये सेक्स एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब हम सेक्स एजुकेशन जो है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्लूड करते हैं. दैन इट इज़ दी इंफॉर्मेशन अबाउट दी अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, यानी कि जो बर्थ की प्रोसेस है उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर स्पर्म और एग के बीच में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो कैसे स्टॉप करवा सके. तो उसके रिलेटेड
जो भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में जो मैरिड या फिर जो फर्टाइल कपल है या फिर ऐसे लोग जिनकी एज मैरिज की है, उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो दैट दे कैन यूटिलाइज दिस ऑल एस्पेक्ट्स. नाउ द सेक्स एजुकेशन ऑल्सो इंक्लूड द केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, क्योंकि जो प्रेग्नेंट मदर हैं उसकी हेल्थ के साथ साथ उसके यूट्रस में जो बेबी डेवलप हो रहा है उसकी हेल्थ भी मदर की हेल्थ पे ही डिपेंड करती हैं. सो अगर मदर जो है उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो जो ग्रोइंग बेबी है उसकी हेल्थ भी अच्छे से धीरे धीरे हेल्दी हेल्थ डेवलप होगी. देन गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दी पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, यानी कि जब बेबी का बर्थ हो जाए आफ्टर डिलीवरी जो है वो मदर और चाइल्ड जो है उनकी किस तरह से केयर की जाती है और वो केयर जो है वो क्यों नेसेसरी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए. अब मेनली आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, मदर जो है उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जो नया बेबी बॉर्न हुआ है उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई, तो इसलिए हमें जो मदर और चाइल्ड है उनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए. नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड दी इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. इसका मेन इम्पोर्टेंट जो है वो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था, दैट मेनली दी मदर ब्रेस्ट मिल्क हैज़ वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन ए और वेराइटीज ऑफ प्रोटीन्स and the nutrients which is very necessary for the mental and physical growth of child. Then the equal opportunities for both male and female child. अभी भी जो कुछ लोग हैं जो मेल और फीमेल चाइल्ड जो है उनमें डिफरेंस करते हैं. सो इन अगर सेक्स एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड किया जाए तो उन्हें मेल और फीमेल चाइल्ड जो हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे दे या फिर क्यों दे उनके बारे में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है. नाउ दिस ऑल्सो इंक्लूड्स अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स दैट इज़ ड्यू टू दी अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन होगी अगर तो उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो इन फ्यूचर जनरेट होगी उसके बारे में भी हम उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. देन अबाउट सेक्स अब्यूज़, क्योंकि अगर किसी चाइल्ड के पास सेक्स रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं है तो अगर वो सेक्सुअली अब्यूज़ भी हो रहा होगा तो भी उसे पता नहीं चलता. सो उसे सेक्स अब्यूज़ के बारे में पता चले उसके लिए इसके पास इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए. देन टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, तो ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि हम सेक्स एजुकेशन से प्रोवाइड कर सकते हैं. अब ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, सो उनकी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है जिससे वो एक्शन प्लान जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके. सो मेनली इट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, यानी कि उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए. दैन दी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी एक्सपर्ट है उनके पास उसके बारे में बहुत अच्छे से उस टॉपिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है. देन ऑल्सो दी मटेरियल सपोर्ट, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से जो एक्शन प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो सके. नाउ दिस ऑल असेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर ऑफ पीपल, यानी कि जो प्रॉब्लम रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम है
रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, उनके लिए मेनली ये सारे एक्शन प्लान जो हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो अब ये जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, अबॉर्शन, इनफर्टिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो उन्हें ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू मिल सकती हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं या फिर जो प्लान्स हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए। सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the population stabilization and the birth control. It's your homework for today.